speakers, all our participants who have taken their time to join this webinar. As you all know that we are celebrating our 75th year of the independence, and we are having our Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration in our country. So on behalf of that, we are having our series of webinar, and today we have kept a webinar on apprenticeship, which is very important and plays a very important role for the youth to build up their skills. So apprenticeship is a program where a candidate can learn the on the job training as well as a basic training, where the candidate can have a practical experience, practical exposure with different employers. And it is a very helpful for candidates who are joining this apprenticeship program with different employers. So with that note, I would like to welcome our eminent speaker from industry, Mr. Vineet Arij and Mr. Amit, who are working in their in different sectors. Mr. Vineet is from poultry sector. He's from Jaffa Comfield Private Limited. This company has a vast, decades of experience in doing a lot of work in poultry sector. And Mr. Vineet has been doing a wonderful job in skilling ecosystem, as well as to make apprenticeship programs successful in our country, especially in poultry sector. So with that note, I would request Mr. Vineet Arij to please give your words regards with this apprenticeship program. Over to you, Mr. Vineet. Thank you. Thank you, Rahul. Thank you for the welcome. To all the participants, good afternoon. It's a lovely afternoon here. Thank you, Rahul, for introducing me to the webinar and all. Just to give you a brief, and just to give you all a brief about Jaffa. Jaffa basically is an Indonesian MNC. It started in Indonesia in 1975. We entered in India in 1995. Currently, we are into 3 businesses in India. So we always have been prominently in poultry. So we have a poultry feed manufacturing. So whatever chickens eat is what we manufacture. For that, we have 5 plants across India. That is the largest business in India. The second business is poultry business, wherein we have farming, hatchery, contract growing farms, all that kind of businesses there. So that's the second business. The third business that we recently ventured into last year in what do you call it, pandemic stage, that we started our own meat stores. So meat stores, there are 4 meat stores in Pune, and then there is what a meat processing plant and online app also. That is currently we are operating out of Pune, but we will soon expand to other cities. So that is all about what I have for my company. In case recently we were also introduced to NAPS program, and that has been helping us in recruiting new fresh talent in the company. And so always whenever we talk about hiring or getting into a new business, cost is a major factor, and manpower has been a challenge wherein hiring cost is there. But NAPS has helped us for getting fresh talent, so that we get at a lesser cost. At the same time, whosoever is the candidate coming in, he wants to learn, gets training, and as well as get paid for it. So that is another aspect. So, and what happens in NAPS is the candidate gets the training, but as well as it is the take home that increases, because it is not considering your PF or any other deductions. So straight out of whatever we decide face to face or all, that has been given to the candidate. So the candidate gets both what do you call it, benefits out of NAPS program. So one is the salary factor, one is the training program, and it is not on contract basis kind of thing. So the person is hired as a trainee. So many a times people think that if you are hired on contract, so it may not be stay for a longer time. But as we hire them as a trainee, and in that too in a government scheme, so people have some trust over it. It is a government scheme. I am paid by the company. I am doing a legitimate job. My job would not go anywhere. Since after the training program is completed and we find the candidate is to be very good, and definitely we take him on roles, and that is the benefit out of this. And once the take home, so once they are taken on roles, the take home increases and all and all.
So training, salary, everything a candidate looks for in a job wherein he has to get in future. So that is there. So that is how the NAPS program has given us a great benefit to us. Over to you, Rahul. Yeah, thank you, Mr. Vineet. It was, a wonderful experience about, how poultry sector can, work in apprenticeship program, and definitely it will help to build up the skilling ecosystem in different sectors. Jaffa Yes. is being doing a lot of work in apprenticeship, and I would like to tell you that they have registered many candidates with Agriculture Sector Skill Council on poultry sector also, and they are giving a training to the candidates where the candidates will be learning the practical knowledge on behalf of that. Thank you so much, Mr. Yes. Vinit, for your kind detailing. Now I would like to introduce Mr. Manish, who is from NFL, National Fertilizer Limited. This is a very big organization in government sector, and Mr. Manish is looking forward to the HR prospects from there, and he will be, helping our participants to learn more about this apprenticeship program. Mr. Manish, can you please start your presentation? Actually, sir, I was sorry. A very good afternoon to everyone. And actually, I'm trying to share my PPT here, but unable to find how I can do that because it's only screen sharing and video optimizing. So if any help you can, then it will be. Ekta, are you there? Can you please help Mr. Manish to get into that? Ekta is there? So, In your down window, there is a button called share. Yes, sir. Actually, this share content, in this share content, I share screen, optimize video, whiteboard, box, Google Drive, photos. Screen share. There is- Screen sharing. Hello, Yes, sir. Manish ji. Yes, sir. Are you able to hear me? There is a box called share, which you can just click on the box called share. Then you will be able to share your screen directly. Yes, sir. After the In start our video, there is a share dialog box. There is a share dialog box. Or okay, leave else it. you can just Uh, share your PPT with our colleagues, either with Rahul or with Ekta, so that they will be able to project your PPT. okay, okay, okay. You That can will do be that very good. quickly. You can do that Yes. on the I'm mail, so just, that I'm just, I'm just sending through email. please. Okay. Sorry for this inconvenience. We will be able to commence the presentation shortly. Yes, sir. Just do it. Rahul sir, I have sent a mail. Thank you. I'm just refreshing it and uh, helping to connect.
Yes, I got your presentation. I'm just sharing the screen. Great. Can all the participants can see that on my screen? Yes, now it's visible. Absolutely. Please go ahead, Mr. Manish. वेरी गुड आफ्टरनून। हिंदी में ज्यादा कन्वीनियंट रहूंगा मैं, तो आई होप कि यहाँ की जो भी ऑडियंस है और जो भी इस प्रोग्राम को लोग देख रहे हैं, जिस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज हिंदी इज गुड। Yeah, absolutely fine. बिल्कुल ठीक है मनीष जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो वेरी गुड आफ्टरनून सबको। और जैसा कि टॉपिक आप देख सकते हैं कि द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैं फर्दर आगे की स्लाइड्स में आपको जो ये बताऊंगा कि बेसिकली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्यों इंडिया में इनिशिएट किया गया, जिसको भारत सरकार प्रमोट कर रही है, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या बेसिक चीजें हैं, कैसे एक एक्ट इसमें क्या क्या प्रोविजंस बना के हमारे यूथ के लिए बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ मैं बाकी और भी कोई चीज है जो अगर आपके जो कि हमारी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप जरूर प्लीज पूछिएगा, और आप बीच में कभी भी अपने क्वेश्चन पुटअप जरूर करिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट ही यही आता है कि अप्रेंटिसशिप की जरूरत क्या है। तो इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि भारत सरकार ने जो कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन इन द सेंस कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां से अगर हम कंपेयर करें, तो जो यूएसए है या जापान है, वहां पे जितने भी यूथ हैं हम उनको तकरीबन 90% के आसपास यूथ को एज अ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हम उनको वो लोग उनको ट्रेंड करते हैं, जिससे कि उनके मैन पावर जो है वो रेडी टू वर्क है। तो जो ये प्रोग्राम है ये पूरी तरह से एक जो भी स्टूडेंट जस्ट अपने पास आउट्स किए हुए हो, या फिर जो जिन्होंने थोड़ी बहुत भी एजुकेशन ली हुई है और वो काम करने को रेडी है लेकिन उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इस लैक ऑफ एक्सपीरियंस को दूर करने के लिए एक तरीके से एक रियल टाइम वर्क एनवायरनमेंट को एक्सपोज कराने के लिए उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप का नीड क्लियर होता है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हैंड ऑन ट्रेनिंग है, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चा काम पे जाए और काम को देखे और काम को सीखे, सीखने के बाद वो कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वो खुद को ये क्लेम कर सके कि नहीं, वो काम को कर सकता है और उसके अंदर ये एक्सपीरियंस है। इसका मेजर बेनिफिट ये है कि एक अप्रेंटिस जब किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी या प्लांट के अंदर में जब वो काम सीखने के लिए जाता है, तो वो एक एक्सपर्ट्स के अंडर में गाइडेंस में रह के, क्योंकि जब भी अब ट्रेनी है तो उसको एक मेंटोर मिलेगा। मेंटोर उसको एक अच्छी तरह से गाइड करेगा कि क्या क्या जरूरत है, क्या 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 चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या सेफ्टी है। तो एक जॉब के पर्सपेक्टिव से पूरा होल नॉलेज वो अक्वायर करेगा और वो इंडस्ट्री के अंदर वो खुद भी एक एक्सपर्टीज को हासिल करेगा। और लास्ट पॉइंट, जैसा कि एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो बेशक इसमें जब भी एक अप्रेंटिस टाइम पीरियड जैसे 6 महीने से लेके 3 साल के बीच में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो इसमें जो भी बच्चा सीखता है, सीखने के बाद अपॉर्चुनिटी उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की बढ़ जाएगी, क्योंकि अब 3 साल में या 1 साल में वो खुद को क्लेम कर सकेगा कि नहीं, आई हैव दैट सर्टेन टाइप ऑफ स्किल, सो आई कैन वर्क
तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए हमारे एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो जैसा कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, सर नेक्स्ट स्लाइड। द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, ये एक्ट 1961 में बनाया गया, जिसमें कि कुछ चीजें, बेसिक चीजें जो डिफाइन की गई है वो मैंने यहाँ पे उसको ब्रीफ करने की कोशिश करी है। तो एक अप्रेंटिस है कौन, कहाँ किसे जाएगा अप्रेंटिस? तो एक कोई भी पर्सन जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए किसी इंडस्ट्री के साथ ट्रेनिंग को ज्वाइन करता है, तो वो अप्रेंटिस है। ठीक है। टाइप्स ऑफ अप्रेंटिसेस क्या हो सकते हैं? तो अगर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, तो वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के अंडर में आते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग, वो भी डिप्लोमा की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो ट्रेड अप्रेंटिसेस हैं, ये ट्रेड अप्रेंटिसेस बेसिकली एक्ट के अंदर में ही 300 से ज्यादा डेजिग्नेटेड ट्रेड डिसाइड किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शनल, किसी भी एजुकेशन फील्ड में जिसकी जरूरत है इंडस्ट्री को और वो इंडस्ट्री में यूज होती है, वो सारे ट्रेड्स ऑप्शनल ट्रेड के अंडर में इंक्लूड करके वो ट्रेड अप्रेंटिसेस, लाइक डेजिग्नेटेड ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड को मिला के अगर जो भी ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज ट्रेड अप्रेंटिसेस। इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है? तो कोई भी कैंडिडेट जिसने सर्टेन 14 साल की उम्र 14 साल की उम्र का हो और उसने कुछ एजुकेशन हासिल करी हो, उसके बाद वो अप्रेंटिसशिप में अपने कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करा सकता है। लेकिन अगर कोई हजार्डुअस इंडस्ट्री है, लाइक एनएफएल, यहाँ पे हजार्डुअस का मतलब ये है कि जहाँ पे थोड़ा कह सकते हैं नेचर ऑफ डेंजर काफी हाई रिस्क पे हो, तो वो हजार्डुअस इंडस्ट्री है। जहाँ पे लाइक गैस हो, ऑयल हो, अमोनिया हो, जो जानलेवा चीजें ज्यादा हैं, तो ऐसी जगहों पे भारत सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि नहीं, इस एक्ट के थ्रू कि नहीं, 18 साल से ऊपर के लोग ही इसमें एंगेज किए जा सकते हैं। और जब भी एंगेजमेंट होगी इनकी, तो इनका फिजिकल फिटनेस क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग Hmm. I think there is some technical glitch on Manish's side. Yeah, so maybe we can wait for some time. And I request all the participants to please mute their mic. I again request them, please mute their mic. Right. Rupa ji, can you please mute your mic? हेलो। Yeah, Mr. Manish, please go ahead. Yeah, we can hear you. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा यहाँ से। Okay. नाउ अब हम बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, बेसिकली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या चीज है और इसके अंदर क्या क्या ट्रेड्स आते हैं, और कैसे एक कैंडिडेट जो कि ट्रेनिंग को करना चाहता हो, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं। तो
ये जानना ज्यादा जरूरी था, तो इस ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग का जिक्र किया है कि जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली एक इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में एक कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करा के, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर कहाँ होते हैं और किस तरह से होते हैं मैं ये अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एक प्रेस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होते हैं। उसको उसके अंडर में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन के लिए, बेसिकली पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के लिए या उस कोर्स के लिए आप उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है 6 महीने से 3 साल का। और अगर हम करंट टाइम में इंडस्ट्री की बात करें तो जहां तक मैंने देखा है मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करती हैं, लेकिन जहां पे जरूरत के हिसाब से कहीं कहीं 2 साल और 3 साल भी है। और इसमें एक चीज और मैटर करता है कि खासकर जिन्होंने डेजिग्नेटेड ट्रेड में आईटीआई है, अब आईटीआई किसी ने 1 साल की आईटीआई करी हुई है तो उसके लिए बेसिकली 2 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम इजिली अवेलेबल है इंडस्ट्रीज के साथ। तो कंपनियां इसी जैसी जरूरत होती है या जितना उन्होंने असेसमेंट कर रखा है कि नहीं इतने साल के हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं, उस हिसाब से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि डेजिग्नेटेड ट्रेड क्या है, तो वो सारी फील्ड जिन्होंने जो भी एक्ट के अंदर मेंशन करी गई है, ठीक है, जिसमें कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल की हेल्प से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि नहीं ये ट्रेड्स जो कि डेजिग्नेटेड ट्रेड के अंडर में आएंगे और इंडस्ट्रीज जो हैं इस ट्रेड्स में ट्रेनिंग देंगी, तो बेसिकली वो डेजिग्नेटेड ट्रेड के अंडर में ट्रीट किया गया है। इसके अलावा वो सभी ट्रेड्स जो कि लिस्ट डेजिग्नेटेड ट्रेड की लिस्ट में नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज उस ट्रेड में अप्रेंटिसेस को ट्रेनिंग दे सकती हैं, तो ये सारे जो कोर्स होते हैं एक बार एम्प्लॉयर को भारत सरकार की जो अथॉरिटीज हैं लाइक आरडीएटी उसके साथ डिस्कस करना होता है कि नहीं हम इस ट्रेड पे आप बच्चों को अप्रेंटिसशिप करा सकते हैं और ये हमारा कोर्स है, ये हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। तो उसके अप्रूवल के बाद वो ऑप्शनल ट्रेड के अंडर में रख के वो सारी ट्रेनिंग्स दी जा सकती है अप्रेंटिसेस को। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पीछे कहा था कि टर्म्स एंड कंडीशंस है और कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो इसमें ये टर्म जो है टर्मिनेशंस के कॉन्सेप्ट में ज्यादा क्लियर होता है। तो जो टर्मिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसेस का, जब भी अप्रेंटिस कोई ज्वाइन करता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने ट्रेनिंग को प्रॉपर सीरियस तरीके से लेके सीरियस होके वो सिर्फ सीखने के लिए आता है वहां पे। इसके पीछे रीजन होता है क्योंकि बहुत बार होता है कि हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि एक अप्रेंटिस आता है, उसको लगता है कि यहाँ तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिल रहा है, तो वो थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। तो इसलिए ये टर्मिनेशन का भी इसमें प्रोविजन बनाया गया है ताकि वो टर्म्स एंड कंडीशन के क्लॉज डाले गए हैं ताकि एक कैंडिडेट जो है वो थोड़ा सीरियस होके एक उसकी सीरियसनेस को समझते हुए इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करे। तो बेसिकली जो टर्मिनेशन होता है, एक तो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट में बनाया कि नहीं हम 1 साल की ट्रेनिंग की है या 2 साल की है या 3 साल की है, तो उस पीरियड के बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है। दूसरा, सपोज एक अप्रेंटिस है यहाँ पे किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने गया और वहां पे ट्रेनिंग करते करते उसने कहीं और भी अप्लाई किया जॉब वगैरह या उसने कोई पहले से दे रखा था, उस केस में अगर उसको जॉब मिल जाती है तो वो सिंपल एक एप्लीकेशन देके अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा सकते हैं। ठीक है। तीसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस, वो टर्म एंड कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक कि आप की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आप कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे, लाइक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और अटेंडेंस है। उसके अलावा आप आपका कंडक्ट जो है वो ट्रेनिंग के साथ
सॉरी कंडक्ट ऑफिस में अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मिसबिहेव कर सकते हैं या ऐसा कुछ भी है। तो एक वो बेसिक चीजें जो एक एम्प्लॉय के साथ लागू होती हैं वो एक ट्रेनी के साथ भी लागू होती हैं। और साथ में ही एम्प्लॉयर की भी कुछ लाइबिलिटीज होती है कि नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्लेस पे ही ट्रेनिंग कराएंगे, साथ में उनको मेंटर अपॉइंट करेंगे और इस चीज का भी ट्रैक देखेंगे कि बच्चा सही से सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। टाइमिंग का भी उस पे मैटर होता है कि बच्चा कब से कब ट्रेनिंग पीरियड पे आएगा। अगर इन सभी पॉइंट में से चाहे एम्प्लॉयर चाहे ट्रेनी दोनों में से अगर कोई भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो बाई एनी पार्टी, चाहे अप्रेंटिस चाहे एम्प्लॉयर, एक सिंपल एप्लीकेशन देके वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्ट में जो मेंशन की गई है वो है हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर। बेसिकली किसी भी प्लांट किसी भी फैक्ट्री के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर का। तो जो चीजें कंपनी अपने वर्कमेंस के लिए रखती है वो सेम चीजें लगभग लगभग हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के लिए उन्हें अप्रेंटिसेस को भी प्रोवाइड करना होता है। तो चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो कि डायरेक्टली डील करता है हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर से, ये सारी चीजें अप्रेंटिसेस के ऊपर भी सेम लागू होंगी। और जैसे कि हेल्थ पे लाइक उनको रेस्ट है, उनका वीकली हॉलीडे है और बेसिकली उनको टाइम पीरियड है और हॉस्पिटल फैसिलिटी है या फर्स्ट एड फैसिलिटी है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें जिस तरीके से ये सारे प्रोविजन जो हेल्थ के लिए एक वर्कर के लिए की जाते हैं वो सारी चीजें अप्रेंटिसेस के लिए भी की जाएंगी। और सेफ्टी से रिलेटेड की सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जैसे हम एक वर्कर को ट्रेंड करते हैं वैसे अप्रेंटिसेस को भी ट्रेंड की जाती है। और वेलफेयर फैसिलिटीज जिस तरीके से एक्स्ट्रा क्रिएशनल एक्टिविटीज में एक वर्कर को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक उसी तरह हमें अप्रेंटिसेस को भी करना होता है। ये मेंशन किया गया बकायदा एक्ट में ताकि एक अप्रेंटिस का फुल फ्लेज डेवलपमेंट एक तरीके से ना सिर्फ वो अपने काम को सीखते हुए बल्कि हर एक चीज, वॉइस नहीं आ रही है, एम ऑडिबल तो सर? आ रही है, सर आ रही है। आ रही है सर? You are audible. You are audible. Audible. ओके। तो इस तरीके से ये सारी चीजें एक अप्रेंटिस के लिए भी अवेलेबल है। साथ में ही आवर्स जो है, आवर्स ऑफ वर्क, बेसिकली बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, प्लांट हैं जहां पे कि काम के घंटे को लेकर क्लियर क्लियर मेंशन किया जाता है कि नहीं, एक अप्रेंटिस आएगा प्लांट के अंदर या फैक्ट्री में या फिर ट्रेनिंग प्लेस पे तो वो कितने घंटे काम करेगा, तो वो सेम 6 घंटे या 7 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 घंटे का नॉर्मल वर्क रूटीन होता ही उनका है। और उनको वो सारी वीकली ऑफ, लीव्स और साथ ही साथ जो भी जनरल छुट्टियां होती हैं या फिर जो भी प्रोविजन होते हैं लंच आवर के या फिर रेस्ट आवर के, वो सारे उनको भी सेम एज इट इज जैसे वर्कर्स को दिए जाते हैं उनको भी जरूर प्रोवाइड करी जाएगी। और साथ में ही कोई भी अप्रेंटिस जो है वो ओवर टाइम के लिए अलाउड नहीं होता है एक्सेप्ट कि कोई बहुत इमरजेंसी का केस हो, बहुत इमरजेंसी का केस हो। और साथ में साथ जब ये भी ये ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट होगा तो वो विद द अप्रूवल ऑफ अप्रेंटिसशिप एडवाइजर होगा। अगर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को ये फील होगा कि नहीं, हमें यहाँ पे ओवर टाइम देना कंपलसरी है, सॉरी मैंडेटरी है, तो ही वो देगा, अदरवाइज वो नहीं देते हैं। और इसके अलावा जनरली जो एक इस्टेब्लिशमेंट होता है वो नॉर्मल छुट्टियों में कैजुअल लीव प्रोवाइड ही करते हैं। तो एटलीस्ट 12 कैजुअल लीव का प्रोविजन एक्ट के अंदर भी है, रूल्स में दिए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल लीव्स में हम 15 एचपीएल देते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो कि नॉन पेएबल होती है बट वो मैक्सिमम 10 ही अलाउड होती है
ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ये विद इन 1 ईयर के लिए होता है। अगर ट्रेनिंग 2 साल की है तो ये सारे डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए सर। हाँ। इसके बाद आता है कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। किसी भी मैटर में कंडक्ट और डिसिप्लिन अप्रेंटिस के लिए सेम वैसे ही एप्लीकेबल होता है जैसे कि एक एम्प्लॉय के लिए उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में। और अप्रेंटिसेस आर नॉट वर्कर। ये बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये एक करिकुलम होता है, करिकुलम का हिस्सा होता है। आप जब भी किसी एक स्टूडेंट जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर में किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ट्रेनिंग करने जाते हैं तो उनको ये चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ मैं कुछ सीखने आया हूँ, यहाँ मेरी लर्निंग चलेगी। तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि लगभग वो 70% टाइम अपना ऑन द जॉब ट्रेनिंग सीखने में दें और 30% आप उसको नोट करने में और उसके नोट्स बना के उसको मेंटेन करने में, डायरी मेंटेनेंस होती है उसमें जरूर दें, ताकि जो भी चीज वो सीखे उसको एज ए रिकॉर्ड रख के वो फ्यूचर के लिए अपने सेव कर सके। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपने काम के प्रति लेके उनकी कुछ राइट्स होती हैं, उनके जैसे यूनियन होती है, उनका अपना कुछ मैनेजमेंट के साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो सब चीजें अप्रेंटिसेस के साथ लागू नहीं होती हैं। तो इस केस में जो अप्रेंटिस है वो पूरी तरह से ट्रेनी है, वो एक स्टूडेंट है और वो इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उसका काम सीखना है, ना कि एक वर्कर की तरह अपने राइट्स और इन सब चीजों की मांग करना। जो राइट्स है या जो भी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, लाइक छुट्टी हो गया, हेल्थ सेफ्टी हो गया, और आपका बेसिकली चैप्टर 3, 4 एंड 5 से रिलेटेड चीजें हो गई, तो वो सारा चीजें अलग से मेंशन कर दी गई हैं। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी चीज मैनेजमेंट से डिमांड नहीं कर सकते और ना ही मैनेजमेंट इंटरटेन करती है। लाइक स्टैट्यूटरीज हो गया, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, ये सब चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, इंश्योरेंस के लिए लाइबल है मैनेजमेंट। तो जो कि नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अप्रेंटिस जो है वो भी एक इंश्योर्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्लांट और इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई अप्रेंटिस आएगा तो एक तो अगर वो हजार्डस नेचर का है तो बहुत ज्यादा रिस्क है, नहीं भी है कोई भी नॉर्मल मशीनरी पे काम है तो एक्सीडेंट का प्रोन बना रहता है उसमें। तो इस केसेस में, इंजरी के केसेस में, जो एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अप्रेंटिसेस को वहां पे गारंटीड डे की नहीं, एनी केस ऑफ इंजरी हम उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो एज पर जो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 है उसके हिसाब से ये सारे इंजरीज के लिए, पर्सनल इंजरीज के लिए या एक्सीडेंट के लिए इनको कवर किया जाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है अप्रेंटिसेस के लिए कि आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो। तो जो पहला हमारा इसमें टॉपिक है कि बीटेक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, बेसिकली जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री के 2 विंग्स के द्वारा मैनेज की जाती है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग वो करती है। तो इसमें जो बीटेक और डिप्लोमा के इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनको इनको अप्रेंटिसशिप का सारा प्रोसीजर डिक्लेयर करती है। इसके लिए जो भी बीटेक या डिप्लोमा के पास आउट्स बच्चे हैं उनको MHRD के पोर्टल पे, बेसिकली www.mhrdnats, इनको इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है। और जो भी स्टूडेंट बीटेक या डिप्लोमा पास आउट है उनको विद इन 3 साल 9 महीने पास होने के, जिस दिन उनकी डिग्री पे जो डेट पड़ी है उससे 3 साल 9 महीने के अंदर उनको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होती है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है।
और जो स्टाइपेंड है वो बेसिकली ग्रेजुएट के लिए 4984 है, और डिप्लोमा के लिए 3500 समथिंग कुछ, 30-35 रुपए कुछ है। सॉरी, मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, और चाहे वो आईटीआई होल्डर्स हो या फिर नॉन आईटीआई होल्डर्स हो, उन सब के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भारत सरकार ने मैनेज किया है, वो एनएपीएस प्रोग्राम के अंडर में दिया है उनको, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसके लिए उनको अप्रेंटिसशिप का नया वेबसाइट अभी लॉन्च हुआ है, apprenticeshipindia.gov.in। आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। इसमें कोई ऐसा पास आउट होने का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। आप जब भी पास आउट हुए हो, आप बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के बाद आपको अप्लाई करना होता है। आप अप्लाई करके अपने हिसाब से जिस भी ट्रेड में आपका है, आप वहां पे लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज भी अवेलेबल होंगी कि किस कंपनी के फला के अंदर कितनी ट्रेड्स अवेलेबल है और कितने ट्रेनिंग पोस्ट उनके पास है और उनको कितनी की रिक्वायरमेंट है। तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पे लॉग इन भी करके दिखा दूंगा अभी। और साथ ही जो अप्रेंटिसशिप का मिनिमम अमाउंट है स्टाइपेंड का, वो भी इन्होंने डिक्लेयर करके दिया हुआ अभी हाल ही में 25 सितंबर 2019 को नए रूल के अकॉर्डिंग ये रेट डिसाइड किए गए थे। तो जिसमें कि 9,000 रुपए ग्रेजुएट को, 8,000 रुपए डिप्लोमा को, और जिन्होंने 1 साल की आईटीआई कर रखी है लाइक कोपा में या डीजल मैकेनिक में, उनको 7700, और जिन्होंने 2 साल की कर रखी है लाइक इलेक्ट्रिशियन या फिटर, तो उनको 8,050 रुपए का स्टाइपेंड पे किया जाएगा। और इसके बाद जो अप्लाई करना है, सर ये लिंक खुल सकता है क्या, apprenticeshipindia.gov.in? I'll just try. नहीं, ऐसे नहीं खुलेगा ये, यू नीड टू। नहीं, इसको जब आप प्ले करेंगे ना सर, तो प्रेजेंटेशन शो करिए, फिर ये लिंक बन जाएगा अपने आप। आप क्लिक करिए, हो जाएगा। Can you see this? Can you see the portal? No sir, it's PPT is showing here. Okay. So, can you see now? नहीं सर, अभी भी पीपीटी ही दिख रही है। तो Okay. ये ब्राउजर ओपन नहीं हो, ब्राउजर ही डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। Okay. आप देख पा रहे हैं ना? Can you see this? हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसा कि अब हम देख सकते हैं, ये पोर्टल है जो कि एनएपीएस प्रोग्राम के अंडर में मिनिस्ट्री ने डेवलप कराई है। तो इसमें सबसे पहले होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने अभी, तो आपको सबसे पहला काम रजिस्टर करना होता है। आप कॉर्नर में रजिस्टर जाके अपना रजिस्टर करिए, आप डिटेल दीजिए। डिटेल भरने के बाद एज अ कैंडिडेट, जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिल करते हैं, फिल करने के बाद ये आपको एक एक्टिवेशन का लिंक अवेलेबल होता है। कोई बात नहीं सर, बस सिर्फ दिखाना था कि वेबसाइट कौन सी है। और इसको लिंक, जब आप ये पेज फिल करते हैं तो फिर आपसे एक्टिवेट करने के लिए बोला जाएगा। आप अपने मेल के थ्रू इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आप दोबारा से जब इस पे लॉग इन करेंगे, तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है
आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद सर ऊपर तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं होम, गेट स्टार्टेड एंड अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करेंगे। यस सर। नाउ अब आप अपने सेलेक्ट कोर्सेज में डेजिग्नेटेड या ऑप्शनल डालेंगे। जैसे ही सर क्लिक करेंगे कोर्स टाइप पे, ऑप्शनल या डेजिग्नेटेड, इसमें से हम जो भी ऑप्शनल पहले अगर हमारा डेजिग्नेटेड में फॉल नहीं होता है, लाइक हमने आईटीआई से कोर्सेज नहीं किए, हमने कोई नॉर्मल बीएससी, बीकॉम, बीए वगैरह किया हुआ है, या फिर और भी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कोर्सेज अगर हमने किए हुए हैं, तो हम सीधे ऑप्शनल ट्रेड में जाएंगे और फिर हम अपने सेलेक्ट कोर्स का नाम लिखेंगे, बेसिकली उससे रिलेटेड क्या क्या कोर्स अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल सर, ये फील्ड के नाम है। जैसे अब मैं बीकॉम अगर होल्डर हूं तो इसमें अकाउंटेंट के पोस्ट दिखेंगे। जैसे ही हम एक अकाउंटेंट टाइप करेंगे आ जाएगा सर ये। उसके बाद हम लोकेशन डालेंगे कि हमें किस प्लेस पे वो चीजें चाहिए, हमें ट्रेनिंग कहाँ करनी है। सपोज अगर मुझे यूपी में करनी है तो वो यूपी के ही एम्प्लॉयर्स की लिस्ट हमारे साइड में दिखेगी। और उसके बाद अगर हमें पता हो कि किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के ही अंडर करना है, तो हम डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट का नाम भी इंटर करके, लाइक इतने फिल्टर अवेलेबल हैं कि आप आसानी से ढूंढ सकते हो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज आपको आसानी से मिलेगी। और यहाँ आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। ऊपर में ट्रेड का नाम, उसके नीचे कंपनी और अप्लाई। तो इस तरीके से जब आप अप्लाई करते हो तो इंडस्ट्री जो भी एम्प्लॉयर होते हैं उनको अपने पोर्टल पे आपकी प्रोफाइल विजिबल होने लगती है एप्लीकेशंस के अंडर में, और फिर वो आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, या फिर आपको किसी टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह के लिए वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल था ये अप्रेंटिसशिप का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया हो इसमें जो भी चीजें मैंने बताने की कोशिश करी हो, और जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हो उनके लिए ये बहुत यूजफुल रहा हो। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इन सब चीजों से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much, Manish ji. It was a wonderful presentation you have given to the candidates and our colleagues also. It was a huge, knowledge gainer for all of us. We have learned a lot of new things in apprenticeship, like in optional trade, designated trade, age criteria, what are the rules the candidate has to follow during the OGT program. And it was a presentation which is basically as a practical side of, thing which we have learned right now. And thank you so much, Manish ji, for your great थैंक presentation. यू सो मच सर। Now, I request our participants, if they have any questions, please do ask. We will certainly help them to give them the answer. Please ask your questions. Myself N.K. Sharma from Assam. क्या है इनके प्रेजेंटेशन में एक था लीव, कैजुअल लीव 12 days, हाफ पे लीव 15 days and 10 days. What is that point? 10 days. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अच्छा, थैंक यू वही है। किसी भी केस में अगर अप्रेंटिस के पास अपने उसने सारे लीव यूज कर ले, लाइक कैजुअल लीव उसने 12 यूज कर लिए, मेडिकल की लीव अगर उसने 15 यूज कर ली, लेकिन सपोज मेडिकल के ही केस में किसी के मान लो इंजरी हो जाती है और उसको 1 महीने का बेड रेस्ट हो, उस केस में क्या होता है कि 15 दिन का एचपीएल तो खत्म हो जाएगा इजिली। तो आगे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, तो उस केस में भी हम 10 डेज का एक्स्ट्रा
उसको छुट्टियां अलाउ कर की जा सकती हैं, बशर्ते वो जो अगली 10 दिन की छुट्टी होती है वो नॉन स्टाइपेंड स्टाइपेंड पेबल नहीं होती है वो। तो इस तरह से उन्होंने प्रोविजन बना रखा है। इसके अलावा कंपनी की अपनी अलग अलग पॉलिसीज भी होती हैं। जैसे कि अगर मैं एनएफएल की बात करूं तो हम एनएफएल में रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का कॉन्सेप्ट रखते हैं। इसके अलावा हम कुछ लीव एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से और भी मिल जाती हैं, तो वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज पे। Fine. So, Manish ji, one of a candidate is asking, what is the duration of the training in apprenticeship program? बेसिकली सर ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर और कंपनीज के जो भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब जैसे हम एनएफएल के अंदर में बेसिकली जितने भी ट्रेड्स हैं, तकरीबन हमारे पास 25 ट्रेड में हैं जिनके अंदर हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। इन सब की ट्रेनिंग ड्यूरेशन हमने एज पर प्लांट के हिसाब से 1-1 साल की ही रखी हुई है। और मैक्सिमम जितना पीएसयूज मैंने देखा अभी तक, जो भी मेरे नॉलेज में है, वो लगभग सभी कंपनियां 1 साल के लिए ही लगभग ऑफर करती हैं। लेकिन कुछ कुछ हैं जहां पे 2-2 साल के लिए ऑफर किया जाता है। और इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया आता है ट्रेनिंग का, वो जो कि आईटीआई के स्टूडेंट हैं और साथ में या फिर नॉन आईटीआई होल्डर्स हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती है। क्योंकि एक नॉन आईटीआई होल्डर लाइक 10th पास है, 12th पास है, ठीक है, और उसने आईटीआई या डिग्री डिप्लोमा नहीं करी है, उस केस में क्या होता है कि उसको जैसे ही वो पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद वो एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर होते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं पोर्टल पे ही, उनके पास जाते हैं 3 महीने के लिए, बेसिक ट्रेनिंग को अपने इनकलकेट करते हैं एक तरीके से। फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री के अंदर में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो अब जिसने ना तो आईटीआई करी है या फिर कुछ नहीं है, तो उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कंपनी 2 साल का भी रखती है, कुछ किसी किसी केस में 3 साल के भी होते हैं। तो जो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 साल या 2 साल या 3 साल ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंपनी आपके साथ कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहती है। Okay. Next question is asked by Mr. Nagaraj. He's asking, stipend will be provided per month or per year? Per month, sir. Stipend always be payable to per month. And one of the candidates is asking that if I am a graduate, so how much stipend I will be getting as an apprentice for a graduate? अब सर ये डिपेंड करता है कि सबसे पहली चीज की जो स्टाइपेंड पेमेंट का क्लॉज है, गवर्नमेंट ने मिनिमम डिसाइड करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि एनएटीएस के अंदर में अगर कोई बीटेक होल्डर है और उन्होंने केमिकल में बीटेक किया हुआ है, बीटेक केमिकल है, तो मिनिस्ट्री कहती है कि आप 4,984 रुपए मिनिमम पे करोगे। लेकिन हम एनएफएल के अंदर में 9,000 रुपए पे करते हैं। कुछ कंपनियां लाइक बीपीसीएल हैं या आईओसीएल हैं, वो 16,000 से लेके 25,000 तक पे करती हैं। तो इट होल एंड सोल डिपेंड ऑन द कंपनी कि वो कितना ऑफर करती है। और ये उनके ऊपर है कि आप जब भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये पता चल जाएगा कि नहीं, ये कितने पे स्टाइपेंड पे मुझे यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी। Okay. So our next question is, what is the difference between apprenticeship and internship program? इंटर्नशिप के लिए सबसे पहली बात आती है कि आपको कहीं रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्री के अंदर में। तीसरा, जो अप्रेंटिसशिप होता है उसमें 2 क्लॉज होते हैं, सेक्शन 22(1) या सेक्शन 22(2). सेक्शन 22(1) ये कहता है सर कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी उसके अंदर जॉब की गारंटी नहीं होगी। सेक्शन 22(1) के अंदर में कोई भी पार्टी जॉब को, जैसे मैं अप्रेंटिस हूं तो मैं
ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप ही के पास जॉब करूंगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम लाइबल बिल्कुल नहीं है, और ना ही कंपनी लाइबल होगी कि आपको जॉब देना ही है। लेकिन सेक्शन 22(2) ये कहता है कि इसके तहत अगर आप अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करते हैं तो बोथ पार्टी इज लाइबल टू execute that contract, the line of contract, whatever it is. मतलब कि आप जॉब करने के लिए बाइंड होते हैं उनके पीरियड में। तो ये सारी बेसिक चीजें जो हैं वो इंटर्नशिप के अंदर में नहीं होती है। इंटर्नशिप इज जस्ट फॉर एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री। आप कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए आते हो, आप ट्रेनिंग करते हो, सीखते हो, और वापस उसको अपने कि वो आपके स्टडी का ही एक हिस्सा होता है, रनिंग स्टडी का। बट अप्रेंटिसशिप आफ्टर द स्टडी आप उसको स्टार्ट करते हो। ये छोटी छोटी बेसिक डिफरेंस है। Okay, so one more question has came, Manish ji. So can apprenticeship be done online? No sir, it is on job training, and आपको जो भी प्लांट है या वर्क प्लेस है वहां जाना ही पड़ेगा। आपको अपने मेंटर के अंडर में काम करना है, सीखना है, ये वहीं से पॉसिबल है। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता, अभी तक मैंने तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं सुना कि ये ऑनलाइन चल रही हो। Okay, so one more question has came. So can we do the apprenticeship while doing our graduation? नो सर, अप्रेंटिसशिप के रूल है सर कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ कोर्स। ये खुद में एक कोर्स है। आपको 1 साल या 2 साल वो ट्रेनिंग करनी है। आप जब भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप रेगुलर कोर्स नहीं कंटिन्यू कर सकते। ऐसा नहीं है, जैसे सपोज मैंने बीकॉम कर लिया, बीकॉम करने के बाद मैंने कहीं ट्रेनिंग ज्वाइन करी, अब मैं ट्रेनिंग पे कंटिन्यू हूं तो मैं इसके आगे एमकॉम परस्यू नहीं कर सकता। तो सेम उसी तरह अभी मैं बीकॉम में हूं तो मैं ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, Okay, क्योंकि ये खुद में एक करिकुलम है। fine. Sir, I'm an agriculture student. How can I find companies which provide apprenticeship in Kerala? बेसिकली आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड। आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा या फिर कोई अदर? Sir, I'm studying degree, BVoc course. विच को? सॉरी। BVoc BVoc. Sustainable Agriculture. ओके ओके। Bachelor of Vocational Education. Yes. In this case you have to apply on NAPS portal, that is apprenticeshipindia.gov.in. In that portal you can find the list of trades which is directly deal with your subject. Whatever Okay. it is named, you can see that there in the list of optional trade or designated trade, and accordingly you can apply on that portal. And Okay, just in addition to that, Afina, you can just go to the portal. You can search apprenticeship opportunities as a location. If you want to do your apprenticeship program in Kerala, there is a tab called Find the Apprenticeship. Start your apprenticeship program as per the location wise. So you can choose your location and you can find that is any company providing their apprenticeship program or not. Okay, sir. Thank you. Thank you. Any more question from participants? No worries. Any time, if any participant is having any query in their mind, they may please write me on placements@aski-india.com. I have also shared my email ID in the chat box. Please do write me in case you have any query related with apprenticeship in optional as well as in designated trade. Now, Yes, sir. Very nice. Yes, sir. N.K. Sharma, very nice webinar presentation. I like to thank Manish Kumar ji. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Now, at end of this webinar, I would like to thank our eminent speakers who have given their time in making knowledgeful to our participants.
Also, I would like to thank our participants who have, helped us for this joining this program and increase their knowledge. Thank you so much for all of you for making this webinar successful. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.